वेरी गुड आफ्टरनून राहुल जी, कैसे हैं? Sir, अच्छा good सर। afternoon. पेट्रोल A पंप पे खड़े warm हैं। welcome to all the respected dignitaries and CA students joining us today for this insightful webinar on e-diary for CA students, organized by SICASA CIRC. On the behalf of entire SICASA committee, it gives me immense pleasure to welcome you all to this knowledge-oriented session aimed at helping students understand the practical importance, compliance aspects, and effective maintenance of e-diary during articleship. We are privileged to have with us CA Anuj Goyal ji, CCM, CA Nitin Gupta ji, Chairman Sikasa CIRC, CA Rahul Gupta ji, today's speaker, and CA Animesh Mangal ji, moderator for this today's session, and entire Sikasa committee of our CIRC. I would like to invite CA Nitin Gupta ji for the opening remarks. Thank you. Thank you, Shivangji. Highly respected CA Dr. Anuj Goyal sir, a Central Council member. सर की एक खूबी मैं आप सबसे शेयर करना चाहूंगा कि सर को जब भी बुलाते हैं 24/7 हम लोगों के लिए तैयार रहते हैं. सो थैंक यू वेरी मच सर फॉर स्पेयरिंग योर वैल्यूएबल टाइम फॉर माय अस. प्लेजर। We have with us Rahul Gupta ji, today's speaker on e-diary, and Animesh Mangal ji, moderator of today's program, and all the Sikasa team and all dear attendees, participants. A very warm good afternoon to all of you. Friends, at a CIRC level, we are trying our level best to see how we can do for the benefit of all the students a program that in a maximum manner we can conduct so that all of you can be benefited from that in this series. Today हमने ई डायरी जो कि 1 जनवरी 2026 से हम सभी लोगों स्टूडेंट्स के लिए आर्टिकल ट्रेनिंग में एप्लीकेबल हुई है, उस पे ये वेबिनार आज ऑर्गेनाइज कराई है और उसमें हमारे साथ राहुल गुप्ता जी हैं. मुझे लगता है कि आप सभी के जो भी डाउट्स हैं वो उसमें क्लियर होंगे, और अगर कोई भी जो इश्यूज और प्रॉब्लम्स आ रही हैं या माइंड में कोई भी डाउट्स या संशय है वो सब चीज खत्म होगी, और आप इस ई डायरी को जो हमारी कंप्लाइंस है उसे हम रेगुलर वे में स्मूथली कंडक्ट कर पाएंगे. मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा. सो थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम. ओवर टू शिवांग जी. शिवांग. Thank you, sir, for your insightful words. Now, I would like to invite CA Dr. Anuj Goyal, sir, CCM, for their opening remarks for the students and dignitaries. Thank you very much, Sivang Bajaj ji, our honorable Sikasa member of Central Region. We are having our very prominent chairman Sikasa, C. Nitin Gupta ji of Central Region. We are having C. Rahul Gupta ji, past chairman Mathura branch, CA Anime Mathura Gwalior branch, and CA Animes Mangal ji, our honorable moderator of the program. All the respected future chartered accountants, FCAs, present with us in this webinar. Friends, I'm really very happy that Sikasa of Central Region is really very active and is trying to come up to the expectation of the students. And friends, as you are very well aware that the Institute of Chartered Accountants of India want to see that how we can really do something very concrete for the FCA's future chartered accountants, and e-diary is one such measure in that direction, and the conflicts between members and students will come to an end, and unnecessary there is always a complaint that even on Saturdays and is the articles have to work in very late hours also. I think all those things will be sorted out, and even the payment, regular payment through electronic mode will be tagged through this e-diary.
So I think it would be really good for the future chartered accountants, so that they can concentrate on their studies, and the exploitation, I will say, of the articles can be stopped, and the dummy articles also, to a great extent, can be resolved. And I am quite confident that the disputes between the chartered accountants and articles will also come to an end to a great extent. So, and now we are moving towards AI regime. So in that AI regime, digitalization of each and everything of the training is very, very important. So I compliment Institute of Chartered Accountants of India, the Board of Studies, and of course the Central Region SASA for being very, very active for our. I am quite uh, confident that this will be a game changer for the very, very important training of the CA student, and they will be benefiting out of that like anything. So all the best to all of you. I compliment Nitin Gupta ji, Chairman Sikasa, for being very, very active. C. Rahul Gupta ji, our very, very prominent leader, the past chairman of Gwalior branch. C. Animesh Mangal ji, and of course our young leader, Sikasa member, Sivang Bajaj ji of the Central Region, and all the respected FCA's future chartered accountant. Thank you very much. Thank you so much, sir. Thank you, sir, for your insightful words. Now, I would like to introduce our today's session speaker, C. Rahul Gupta ji, and today's session moderator, C. Animesh Mangal ji. I would like to now hand over the charge of today's session to C. Animesh Mangal ji, and I would like to request him to take the proceedings and lead us into the session. Thank you so much, Shivang. Good evening, everyone. Respected CA Anuj Goyal sir, CA Nitin ji, CA Ankush ji, Chairman CIRC, आज के हमारे स्पीकर CA Rahul ji, and all future chartered accountants. We welcome you all in the mandatory session e-webinar of on e-diary, newly conceived by ICAI. जैसे कि अभी अनु सर ने बता ही दिया था कि वो कंसेप्ट लाया क्यों गया है, लेकिन जैसे ही ई वेबिनार का फ्लायर मेरे तक पहुंचा, मैंने भी कई स्टूडेंट में सर्कुलेट किया, और वहां से कई सारे स्टूडेंट्स की क्वेरीज थी। ये अभी मेरे ही आर्टिकल हैं, तो उनकी भी क्वेरी थी, सर मैंने डायरी तो भर दी थी, लेकिन मेरे को पता ही नहीं कैसे वर्क होगी, क्योंकि मेरी 12 दिन की एक लीव लग गई है, तो मेरे को पता ही नहीं वो रिजॉल्व कैसे होगी। मैंने तो टाइम पे भर दी थी। तो जब भी कोई नया लॉ आता है, कोई नया कॉन्सेप्ट आता है, चाहे वो कोई इनकम टैक्स दे, जीएसटी दे, या हमारा बॉडी आईसीआई दे, तो बहुत सारी क्वेरीज निकल के आती हैं, और सीआईआरसी का बहुत बहुत धन्यवाद है इसमें कि ऐसा एक इनिशिएटिव लिया कि ये सारी क्वेरीज एक वेबिनार में सॉल्व हो सके। और राहुल जी को बहुत सारा थैंक यू है कि उन्होंने लीड ली कि वो इस टॉपिक पे बोलेंगे। तो अपन बिना कोई देरी किए सीधे राहुल सर के साथ चलते हैं, जिससे वो सेशन को स्टार्ट करें। बीच बीच में जितनी भी क्वेरीज होंगी स्टूडेंट्स की, हम वो सारी रिजॉल्व करेंगे। और बिना कोई देरी किए मैं माइक हैंड ओवर करना चाहूंगा राहुल सर को। सो प्लीज सर। Thank you, Animesh ji. First of all, a very good afternoon to our honorable Central Council member C. Anuj Goyal sir. और सर के appreciating words हमेशा हमें motivate करते हैं। He is very energetic and 24/7 available. जब भी उन्हें कॉल करें तो वो हमेशा अवेलेबल रहते हैं किसी भी क्वेरी या किसी भी डाउट के लिए, और हमेशा सॉल्व करते हैं। तो it's a very good pleasure to have him with us. And good afternoon to our chairman Sikasa, very functional and a very practical person, ये नितिन गुप्ता जी। मैं उनका धन्यवाद भी कहूंगा कि उन्होंने मुझे इस सेशन के लिए, इस वेबिनार के लिए एज अ स्पीकर चुना, तो थैंक यू सर। और अनिमेश जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने उद्बोधन किया बहुत ही अच्छा। शिवांग जी, चूंकि आप मेंबर हैं सिकासा कमेटी के, सीआईआरसी के, तो बहुत अच्छा लग रहा है। न्यू एनर्जीज हैं और यंग एनर्जीज हैं, और हमारे साथ सभी पैनलिस्ट जुड़े हुए हैं। अब मैं बिना किसी देरी किए सेशन को स्टार्ट करता हूं, और जो भी क्वेरीज होंगी स्टूडेंट्स की, उनको रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा जितना मुझे आता है, जितना मैं ये डायरी समझा हूं।
एक स्टूडेंट की क्वेरी आए, लेकिन मैं सबसे रिक्वेस्ट ये करूंगा कि आपकी जो भी क्वेरीज हम एंड में लेंगे, एक बार आप पूरे सेशन को सुन लीजिए, क्योंकि हो सकता है ज्यादातर क्वेरीज उसमें रिजॉल्व हो जाए, तो इसलिए सेशन के एंड में हम क्वेरीज लेंगे। बट अभी सार्थक जी ने कोई क्वेरी की है। आई स्टार्टेड माय आर्टिकलशिप इन अगस्त 2024, इज ई डायरी एप्लीकेबल टू मी? ई डायरी आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है सार्थक जी। ई डायरी सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल है जिन्होंने अपनी आर्टिकलशिप 1 जनवरी 2026 या 1 जनवरी 2026 के बाद स्टार्ट की है। ठीक है, अब आते हैं हम अपने वेबिनार पे। मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूं आप सभी लोगों के साथ। मैंने एक पीपीटी प्रेजेंटेशन बनाया हुआ है। आई होप इट इज विजिबल टू एवरीवन। प्रेजेंटेशन क्या सभी को विजिबल है? प्लीज गिव द कंसेंट। यस, जी विजिबल सर, है। विजिबल। राहुल भाई, ओके ओके, इसे वन पेजर भी कर सकते हो, बड़ा कर सकते हो, फुल स्क्रीन। जी जी, चलिए। यस तो अभी हम आते हैं, पहले तो आईसीएआई ने जो लॉन्च किया है ई डायरी का कंसेप्ट, ये होता क्या है, और थोड़ा सा ओवरव्यू ये भी लेते हैं कि आईसीएआई ने ई डायरी को लॉन्च क्यों किया। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे, या फिर जो पुराने स्टूडेंट्स जो जुड़े हैं जो जानते ही होंगे, जो अभी नए स्टूडेंट्स हैं उनकी जानकारी के लिए भी मैं बता देता हूं कि पहले ये पूरा प्रोसेस मैनुअल होता था। फिजिकली सारे फॉर्म्स फिल होते थे, फिजिकली अटेंडेंस लगती थी फॉर्म में। जो हमारा आर्टिकलशिप कंप्लीशन का फॉर्म होता था उसी में ही हम पूरा डिटेल्स भरते थे। इवन मैंने भी अपना बहुत सालों पहले जब आर्टिकलशिप कंप्लीशन का फॉर्म भरा था, तो उसमें मैन्युअली ही अपनी सारी डिटेल्स डाली थी कि मैंने ऑडिट में कितना काम किया है, टैक्सेशन में कितना काम किया है, या अलग अलग फील्ड्स में मैंने कितना क्या क्या काम किया है। तो ये जो मैनुअल प्रोसेस अभी तक चल रहा था, इसको चूंकि हमें एक डिजिटली फेस की तरफ हमारी कंट्री मूव कर रही है, इंस्टीट्यूट हमारा बहुत ही एग्रेसिवली डिजिटली फेस की तरफ मूव कर रहा है, जो कि बहुत ही अप्रिशिएबल और बहुत ही अच्छा है। तो इस डिजिटल फेस को मीटअप करने के लिए इंस्टीट्यूट ने इस मैनुअल और फिजिकल प्रोसेस को खत्म करके, डिसकंटिन्यू करके ई डायरी का कंसेप्ट स्टार्ट किया है। ई डायरी का कंसेप्ट, कुछ स्टूडेंट्स का मुझसे ये भी कहना था कि सर थोड़ा हेक्टिक है, अभी थोड़ी मुश्किलें आ रही हैं, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो इस पर मैं ये कहूंगा कि जब भी कोई नई शुरुआत होती है किसी भी चीज की, तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, कुछ क्वेरीज भी होती हैं, कुछ इश्यूज भी आते हैं, जिन्हें इंस्टीट्यूट लगातार कड़ी मेहनत से रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश कर रहा है। और जो बीच में टेक्निकल प्रॉब्लम्स थी भी, उन्हें काफी हद तक इंस्टीट्यूट ने रिजॉल्व भी किया है। तो चलिए समझते हैं पहले कि आईसीएआई की ई डायरी है क्या। ये उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल है जिनकी आर्टिकलशिप ट्रेनिंग 1 जनवरी 2026 से स्टार्ट है। मतलब जिसकी भी आर्टिकलशिप, जिस भी सीए स्टूडेंट की 1 जनवरी 2026 से पहले की आर्टिकलशिप स्टार्ट है, उन पर ई डायरी का कंसेप्ट एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, अब ई डायरी क्या काम कर सकती है? ई डायरी एक डिजिटल टूल है जो कि आपकी डेली वर्क एक्टिविटीज, आप आर्टिकलशिप में जो भी आप काम करते हैं, डेली एक्टिविटीज करते हैं, उसको रिकॉर्ड करने के लिए होता है। आपने यदि कोई लीव ली है या कोई हॉलीडे है, तो उसका भी रिकॉर्ड उस ई डायरी में होता है। सबसे मेन जो आर्टिकल्स का थोड़ा फेवरेट भी होगा, स्टाइपेंड जो उन्हें मिलता है हर महीने, तो स्टाइपेंड का भी रिकॉर्ड इस ई डायरी में मेंटेन करना है। कैसे करना है, क्या करना है, वो हम आगे अभी देखेंगे। ठीक है, तो ई डायरी में आपने जो भी काम किया अपनी आर्टिकलशिप के दौरान, वो पूरा काम आपको इसमें रिकॉर्ड करना है, और आपको अपने स्टाइपेंड का रिकॉर्ड मेंटेन करना है उसमें, और यदि कोई लीव है तो वो भी इस ई डायरी में मेंटेन की जाएगी। नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं हम। ई डायरी ट्रांसपेरेंट है, चूंकि ऑनलाइन डिजिटली रिकॉर्ड पूरा मेंटेन हो रहा है, तो इसके लिए कोई भी एम्बिग्यूटी ये नहीं रहेगी कि भाई कोई कॉन्फ्लिक्ट है प्रिंसिपल और आर्टिकल के बीच में, कि प्रिंसिपल कहे तुमने ये काम नहीं किया था अपने आर्टिकलशिप के दौरान, या आर्टिकल कहे कि सर मैंने तो काम किया है और ये मैं डॉक्यूमेंट भी कर रहा हूं। तो इसलिए ट्रांसपेरेंसी है ई डायरी की, कि जब भी आर्टिकल काम करेगा तो प्रिंसिपल को उसका डेटा अपडेट होता रहेगा, और ये ट्रांसपेरेंट भी है। आर्टिकल्स तो देख ही सकते हैं, साथ में प्रिंसिपल भी लगातार उस पर मॉनिटरिंग कर सकते हैं कि कब कौन सा काम
आर्टिकलशिप के दौरान स्टूडेंट कर रहा है। फिर है अकाउंटेबिलिटी दोनों की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्टूडेंट की भी और प्रिंसिपल की भी। स्टूडेंट की ये अकाउंटेबिलिटी कि उसको अपना जो भी काम वो आर्टिकलशिप में कर रहा है वो पूरा काम रिकॉर्ड मेंटेन करना है ई डायरी में, और प्रिंसिपल की ये अकाउंटेबिलिटी है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी डेटा स्टूडेंट ने अपलोड किया है ई डायरी में अपने काम से रिलेटेड, उसको वेरीफाई करे, चेक करे और अप्रूव करे, या फिर उन्हें लगता है कि नहीं भाई कुछ गलत अपलोड कर दिया है स्टूडेंट ने या फिर इसमें कुछ करेक्शन की जरूरत है, तो आस्क फॉर करेक्शन का भी एक ऑप्शन आता है, हम आगे देखेंगे, वो क्लिक कर सकते हैं, वो भी उसको ऑप्ट करके, जिससे कि वापस स्टूडेंट उसको करेक्ट करे और फिर से अपलोड करे। फिर आते हैं हम डॉक्यूमेंटेशन पे। ऑब्वियसली डॉक्यूमेंटेशन कैसा कि जो भी काम स्टूडेंट ने करा है अपनी आर्टिकलशिप में उसका पूरा डॉक्यूमेंटेशन बनता चला जाएगा कि टैक्सेशन का कितना काम किया है, डायरेक्ट टैक्सेशन में, इनडायरेक्ट टैक्सेशन में, ऑडिटिंग में, बैंक ऑडिट्स, कॉन्करेंट ऑडिट, स्टैट्यूटरी ऑडिट्स या फिर टैक्स ऑडिट्स में या कंपनी ऑडिट्स में, जीएसटी के कंप्लायंसेस में, इनकम टैक्स के कंप्लायंसेस, लिटिगेशन वर्क्स में, जो भी जितने भी काम होते हैं उन सबका एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन बनता चला जाता है, एक रिकॉर्ड बनता चला जाता है जिसे जो बाद में मॉनिटर कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट कंप्लायंस, चूंकि आईसीआई ने इसे मैंडेटरी कर दिया है तो ये सभी सीए स्टूडेंट्स को 1 जनवरी या उससे बाद में जिनकी भी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई है उनके लिए कंपलसरी है इसे मेंटेन करना। अब आते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। इससे आर्टिकल असिस्टेंट का क्या बेनिफिट है? कई सारे स्टूडेंट्स ये सोच रहे होंगे कि भाई पहले का ही प्रोसेस अच्छा था, ये क्यों कर लिया है, अब ये भी डेली करना है, इस पर भी डेली अपडेट करना है। बट इंस्टीट्यूट हमारी मदर बॉडी है, वो जो भी काम करते हैं बहुत सोच समझ के करते हैं, लॉन्ग विजन से करते हैं। तो उन्होंने अगर ये स्टेप लिया है तो ये स्टेप स्टूडेंट्स और प्रिंसिपल मेंबर्स के बेनिफिट के लिए ही होगा। जैसे हम यहाँ पर देखते हैं स्लाइड में कि रियल टाइम प्रोग्रेस ट्रैकिंग, आप जब भी कोई काम करेंगे सीए स्टूडेंट्स तो उसकी रियल टाइम आप उसका डेटा अपलोड करते हैं। जैसे कि ई डायरी में आप डेली भी डेटा अपलोड कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं उसमें जो भी काम आपने डेली किया है। जैसे कि आपने किसी पर्टिकुलर डे पे इनकम टैक्स और जीएसटी का काम किया है तो आप उसमें ये फिल करेंगे कि आपने इनकम टैक्स में इतना काम किया, हाफ डे आपने इनकम टैक्स किया है, हाफ डे आपने जीएसटी के कंप्लायंसेस पे काम किया है या लिटिगेशन में जो भी है काम किया आपने अपने ऑफिस में, वो आप उसमें फीड कर सकते हैं। तो रियल टाइम प्रोग्रेस होती है, मतलब फोर्टनाइटली जब इसमें डेटा अपडेट होता है, डेली डेटा अपना अपडेट करेंगे, जब आपके प्रिंसिपल इसे चेक करेंगे 15 दिन के बाद तो वो इसको वेरीफाई कर सकते हैं, देख सकते हैं कि भाई सीए स्टूडेंट ने क्या क्या काम अभी तक कर लिया है। फिर एक्यूरेट स्टाइपेंड रिकॉर्ड्स, आपको जब भी आपका स्टाइपेंड मिलता है तो उस महीने के बाद, जैसे कि अप्रैल मंथ का आपको स्टाइपेंड मिल चुका है तो आप उसको मई के फर्स्ट फोर्टनाइट में, मतलब F1 में, फोर्टनाइट क्या होता है, 15 दिन के ब्लॉक को फोर्टनाइट कहते हैं। तो फर्स्ट से लेके 15 डेट तक जो ब्लॉक होगा उसे कहेंगे हम फर्स्ट फोर्टनाइट, दैट इज F1। ठीक है, तो उस F1 में अपने स्टाइपेंड का रिकॉर्ड जो है सीए स्टूडेंट को मेंटेन करना है, उसको फीड करना है कि भाई उसको स्टाइपेंड किस डेट में मिला, कितना मिला और उसका मोड ऑफ पेमेंट क्या था, दैट इज यूपीआई या फिर चेक से या फिर कार्ड से या फिर एनी अदर मोड जो भी। ठीक है, फिर है रिड्यूस्ड डिस्प्यूट्स। देखिए आर्टिकल्स और प्रिंसिपल्स के बीच में कभी कभी ये डिस्प्यूट होता था काम को लेकर कि भाई तुमने इतना काम किया या इतना नहीं काम किया, तो वो सारे डिस्प्यूट्स भी खत्म हो जाएंगे, दोनों के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहेगा। दोनों को, क्योंकि 15-15 दिन में डेटा अपडेट होता चलेगा सिस्टम में, तो प्रिंसिपल को भी पता है कि आर्टिकल ने क्या किया और आर्टिकल को भी पता है कि मेरे प्रिंसिपल ने सब कुछ देख लिया है, चेक कर लिया है। क्योंकि जब भी सीए स्टूडेंट अपना डेटा ई डायरी में फीड करते हैं उसे आर्टिकल वेरीफाई करते हैं, अप्रूव करते हैं। आफ्टर दैट, मतलब कि जैसे कि अप्रैल मंथ को हम एग्जांपल लेते हैं तो फर्स्ट से लेके 15 अप्रैल फर्स्ट फोर्टनाइट होगा F1। उसका आप सेकेंड फोर्टनाइट मतलब 6 से लेके 30 अप्रैल तक उस टाइम पीरियड में जो इंस्टीट्यूट रिकमेंड करता है और जो एक कॉमन सेंस भी है कि आप अपने
ट्रेनिंग डेटा को, आर्टिकलशिप के डेटा को डेली अपडेट करें अपनी ई डायरी में। मतलब कि आपने 1 अप्रैल को क्या काम किया उसे मेंटेन करें, 2 अप्रैल को क्या काम किया वो भी आप उसे 2 को ही अपडेट कर दें, 3 का काम किया 3 को कर दें। इस तरीके से आप डेली अपना डेटा अपडेट करें अपनी ई डायरी में। उससे ये बेनिफिट होगा आपको कि एक तो 15 दिन का जो डेटा है आपको तैयार मिल जाएगा, थोड़ा कम टाइम भी लगेगा, और जब आप 16th डे पर आएंगे तो आपको इकट्ठा अपने 15 दिन का डेटा मेंटेन, ठीक है, तो ये एक अच्छी चीज है। फिर आते हैं करियर डॉक्यूमेंटेशन पे। ये आपके करियर का, आपने अपनी आर्टिकलशिप के दौरान कितना वर्क एक्सपोजर किया, कहां कहां पर आपका एक्सपीरियंस रहा, फॉर एग्जांपल टैक्सेशन में, ऑडिटिंग में, एश्योरेंस में, या और भी कई तरीके की कंसल्टेंसी में, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी की भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, तो उसमें भी क्या आपने काम किया है, लिटिगेशन में, तो कई तरीके के फील्ड्स होते हैं, उसमें आपका जो आपका वर्क एक्सपीरियंस रहेगा आर्टिकलशिप के दौरान वो भी इसमें मेंटेन होता रहेगा। मतलब जब भी आगे वेरीफाई किसी को करना होगा तो आप अपनी डायरी दिखा सकते हैं कि भाई मैंने अपना आर्टिकलशिप के दौरान ये काम किया है। तो इससे कोई डिनाई नहीं कर पाएगा कि आपने क्या क्या काम करा है, और ये आपके लिए भी बहुत अच्छा है। फिर आते हैं प्रिंसिपल के लिए क्या बेनिफिट रहते हैं। प्रिंसिपल के लिए ये बेनिफिट है, ठीक है, गाइडलाइन अलाइनमेंट, इंश्योर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स मीट आईसीआई रिक्वायरमेंट, मेंटेन बैलेंस्ड एक्सपोजर अक्रॉस प्रैक्टिस एरियाज। अब इसमें क्या है कि फॉर एग्जाम्पल ज्यादा में ऐसा होता है कि वहां पर एक सिंगल लाइन ऑफ वर्क मिल जाता है सीए स्टूडेंट्स को, और वो 2 साल तक अपनी आर्टिकलशिप के दौरान वही काम करते रहते हैं। तो डायरी से ये बेनिफिट होगा कि ये भी पता चलता रहेगा कि आर्टिकल ने कितना टाइम, कितने फील्ड ऑफ किया है। फॉर एग्जांपल आपने जैसे कि ऑडिट का काम किया है, तो ऑडिट में आपका सिर्फ वर्क एक्सपोजर तो नहीं, तो ई डायरी से पता चला है कि आपका काम किस फील्ड में था, और अलग अलग, जैसे कि अब किसी प्रिंसिपल को पता चला कि नहीं भाई इसने काफी दिन इसमें ऑडिट में अपने निकाल लिए हैं, अब इसको थोड़ा टैक्सेशन में भी लिया, 15 दिन इसने ऑडिट में ही काम किया है, तो अब थोड़ा एक्सपोजर इसको टैक्सेशन का भी होना चाहिए। तो बार बार ई डायरी को जब रिव्यू करेंगे प्रिंसिपल्स, तो उनको ये बेनिफिट रहेगा कि सीए स्टूडेंट्स को क्या क्या एक्सपोजर देना है, क्या क्या उनसे काम लेना है, और सीए स्टूडेंट्स के लिए तो है ये बेनिफिशियल। फिर है परफॉर्मेंस रिपोर्टिंग, जनरेट एक्यूरेट परफॉर्मेंस रिपोर्ट बेस्ड ऑन डॉक्यूमेंटेड एविडेंस। अब सीए स्टूडेंट जो भी डेटा इसमें डालेंगे वही उनका रिपोर्ट बनेगा। रिपोर्ट कैसा, एक कि भाई उन्होंने क्या काम किया, किस किस एरिया में काम किया। रिस्क मैनेजमेंट, रिड्यूस कंप्लायंस रिस्क थ्रू टाइमली रिव्यूज एंड प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन ट्रेल्स। एक मैनेजमेंट है कि भाई टाइमली डेटा भी अपलोड होता जा रहा है, टाइमली आपकी अटेंडेंस भी लगती जा रही है, टाइमली इंस्टीट्यूट के पास भी ये डेटा जा रहा है कि भाई सीए स्टूडेंट्स कितना काम, कितना समय किस काम में दे रहे हैं। फिर आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, हाउ द ई डायरी वर्क्स। ई डायरी कैसे वर्क करती है। सबसे पहले डेली एंट्री, सजेस्टेड यही है कि आप डेली एंट्री करेंगे तो बहुत अच्छा है, अपने डेली जो भी काम किया है उसको ई डायरी में अपडेट करें। सेकेंड स्टेप है फोर्टनाइटली सबमिट। अब देखिए फॉर एग्जांपल हमने अप्रैल मंथ लिया था, तो 1 अप्रैल से लेके 15 अप्रैल, अब इन 2 तारीखों के बीच में आपने जो भी काम किया है 15 दिन, उसका डेटा आपको 16 से 30 के बीच में सबमिट करना है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आपने डेली अपना डेटा फीड कर लिया है 1 से लेके 15 तक, उसे सबमिट करने का जो टाइम रहता है, टाइम लिमिट, वो है 16 से लेके 30 अप्रैल, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिए कि फोर्टनाइटली ही इसको सबमिट करना है, मतलब 15 दिन का ब्लॉक होता है, 1 to 15 और 16 to 30। फेब्रुअरी के केस में 16 to 28 रहेगा। फिर थर्ड स्टेप आता है प्रिंसिपल रिव्यू। जब आप अपना डेटा फीड करके उसे नेक्स्ट फोर्टनाइट में सबमिट कर देते हैं, तो उसके बाद वो चला जाता है प्रिंसिपल के लॉगिन आईडी पे एक तरीके से। तो लॉगिन करके प्रिंसिपल जब अपना चेक करते हैं कि भाई सी आर्टिकल ने इन 15 दिनों में क्या काम किया, तो उसमें वो उसको रिव्यू करते हैं कि क्या भाई डेटा फीडिंग जो थी सीए स्टूडेंट ने करी है वो सही है कि नहीं,
उन्होंने सभी एक्सपोजर्स ले लिए कि नहीं, जितना भी प्रिंसिपल को याद होगा या उस हिसाब से जो भी उनका म्यूचुअली डिस्कशन भी रहेगा सी स्टूडेंट का और प्रिंसिपल का, तो वो प्रिंसिपल उसको रिव्यू करके और अप्रूव करते हैं। अगर सब कुछ सही लगता है उन्हें तो वो अप्रूव कर देते हैं, और अगर सब कुछ सही नहीं है, कुछ करेक्शन की जरूरत है, तो वहां पर एक ऑप्शन आता है आस्क फॉर करेक्शन। यदि प्रिंसिपल उसको आस्क फॉर करेक्शन को ऑप्ट करते हैं तो वापस से स्टूडेंट के पास करेक्शन की विंडो ओपन हो जाती है उनके लॉगिन पर, और स्टूडेंट को फिर से उसको एडिट करना होता है, करेक्शन करना होता है, और जब वो करेक्शन करके सबमिट कर देता है तो वापस से प्रिंसिपल के पास वो आ जाता है, और 7 डेज के अंदर प्रिंसिपल को उसे करना होता है। अब यहाँ पर ये क्वेरी है कि भाई फोर्टनाइटली स्टूडेंट ने तो सबमिट कर दिया, ठीक है, 16 से लेके 30 अप्रैल के बीच में, बट क्या प्रिंसिपल के पास भी कुछ टाइम लिमिट है क्या उसे? बिल्कुल, प्रिंसिपल के पास 2 फोर्टनाइट का समय होता है सबमिशन के बाद। वो 2 फोर्टनाइट तक ई डायरी को, जो कि सीए स्टूडेंट ने सबमिट किया है, उसे अप्रूव करने के लिए। यदि वो उसे अप्रूव नहीं करते हैं तो उसे ऑटो अप्रूव मान लिया जाता है, ठीक है। और यदि जो करेक्टेड डेटा, एडिटेड डेटा, फर्स्ट केस में जो हम डिस्कस कर रहे थे, यदि उसको भी प्रिंसिपल 7 डेज में अप्रूव नहीं करता है तो वो भी ऑटो अप्रूव मान लिया जाएगा, ठीक है। फिर आते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में, सबमिशन एंड वेरिफिकेशन टाइमलाइन। डे, इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है वो है डे 1 to 15 डेली वर्क एंट्रीज रिकॉर्डेड एंड सेव। अगर आप डेली एंट्रीज रिकॉर्ड करते हैं तो बहुत ही अच्छा है, और आप उसे सेव भी कर सकते हैं। अभी बीच में ये भी इश्यूज आ रहे थे कि सेव नहीं हो रहा था डेटा, या डेटा सेव हो जाता था, 15 दिन का पूरा डेटा सेव कर लिया सीए स्टूडेंट ने, और फिर जब वो वापस लॉगिन पर गए उसे सबमिट करने के लिए, तो वहां से पूरा डेटा ही इरेज हो गया था, जो कि अब शायद इस इश्यू को इंस्टीट्यूट ने रिजॉल्व कर दिया है। फिर आते हैं हम सेकंड स्टेप पे, डे 15 फोर्टनाइटली सबमिशन कंप्लीटेड। मतलब डे 15 को आप अपना डे 15 का डेटा डालते हैं, और फिर उसके बाद सेकंड फोर्टनाइट में उसे सबमिट कर सकते हैं। फिर आते हैं थर्ड स्टेप, डे 16 to 30 में, रिमेनिंग नेक्स्ट 15 डेज एंट्री शुड बी रिकॉर्डेड, प्रिंसिपल रिव्यू पीरियड 30 डेज, ठीक है। फोर्थ स्टेप, इफ प्रिंसिपल इज नॉट अप्रूव विद इन 30 डेज देन इट विल बी ऑटोमेटिकली अप्रूव, स्टूडेंट रिवीजन विंडो 7 डेज रीडायरेक्टेड। अगेन आस्क फॉर करेक्शन वाले ऑप्शन में 7 डेज का टाइम रहता है प्रिंसिपल के लिए अप्रूव करने का। फिर एक इंपॉर्टेंट नोट है कि द सिस्टम ऑटोमेटिकली फ्लैग्स इनकम्प्लीट एंट्री। यदि कोई भी एंट्री, कोई भी बॉक्स उसमें आप फिल नहीं करते हैं जो मैंडेटरी होता है, तो जो सिस्टम है उसे फ्लैग कर देता है, एक रेड मार्क टाइप का कुछ आता होगा, तो उस पर फिर आप उस बॉक्स को फिल करना कंपलसरी है, ठीक है। और अगर आप डेली इसको अपडेट करेंगे तो देखिए 5 से 10 मिनट या 10 से 12 मिनट लगेंगे, और वो ही करना ज्यादा बेनिफिशियल है आपके लिए। फिर आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, स्टूडेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सबसे पहले स्टूडेंट की क्या जिम्मेदारी है? फर्स्ट पॉइंट, डेली डॉक्यूमेंटेशन। आर्टिकलशिप में आपने जो भी काम किया है उसका यदि आप डेली डॉक्यूमेंटेशन रखेंगे तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है, और आपको बार बार अपने प्रिंसिपल को भी जस्टिफिकेशन नहीं देना है। सेकंड, कंप्लीट डिटेल्स। आपने जो भी काम किया है उसका कंप्लीट डेटा उसमें रहेगा, ठीक है। प्रोफेशनल लैंग्वेज, जो भी आप डेटा फीडिंग करें उसमें प्रोफेशनली ही उसमें वर्ड्स को यूज करें, प्रोफेशनली लैंग्वेज का इनपुट रखें। बहरहाल उसमें ज्यादातर तो स्क्रॉल जब आप करते हैं, जब वहां पे फिल करने का ऑप्शन आता है ई डायरी में, तो वहां पर जो ड्रॉप डाउन होता है उसमें सारे ऑप्शंस पहले से ही ऑटो सिलेक्टेड आते हैं, तो आपको केवल अपने ड्रॉप डाउन लिस्ट में से सिलेक्ट करना होता है अपने ऑप्शन को। बट एक एनी अदर वाला भी, एक अदर वर्क वाला भी एक कॉलम होता है सबसे लास्ट में, उसमें आप अपने 160 वर्ड्स की लिमिट होती है, आप उसमें कुछ अपने बारे में, काम के बारे में कुछ लिखना चाहे तो वो भी लिख सकते हैं, बट हमेशा ध्यान रखें अवॉइड यूजिंग क्लाइंट्स नेम, क्लाइंट का नेम नहीं डालना है, ठीक है। फिर आते हैं फोर्थ पॉइंट, टाइमली सबमिशन। सबमिट एंट्रीज एवरी 50 डेज एंड रिस्पॉन्ड प्रॉम्प्टली टू प्रिंसिपल फीडबैक। अपनी सभी एंट्रीज को 15 दिन में, हर 15 दिन जो फोर्टनाइट है उसको कंप्लीट करें, और जो भी आपका प्रिंसिपल का फीडबैक है वर्बली या राइट आस्क फॉर करेक्शन के मीडियम से, तो उसे भी उसका प्रॉम्प्टली रिस्पॉन्ड करें। फिर है फिफ्थ, स्टाइपेंड ट्रैकिंग। पेमेंट का स्टेटस क्या है, अमाउंट किस मोड से पेमेंट हुआ है, ये ट्रांसपेरेंसी उसमें रहती है, और पता चलता रहता है कि स्टाइपेंड का पेमेंट कितने महीनों का हो चुका है और आगे कब तक का ड्यू है।
प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, प्रिंसिपल की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? प्रिंसिपल एक सुपरवाइजरी या एक सर्टिफाइंग रोल प्ले करता है ई डायरी के सिस्टम में, जिससे कि ट्रेनिंग की क्वालिटी और ऑथेंटिसिटी बनी रहे। पीरियोडिक रिव्यू करता है वो अपने आर्टिकल असिस्टेंट के काम का, उसकी एंट्रीज का जो ई डायरी में करी है। वेरिफिकेशन ऑफ एक्चुअल वर्क एक्सपोजर, जो भी उसने एक्चुअली काम किया है, जो भी उसको एक्सपोजर मिला है आर्टिकलशिप के दौरान, उसका वेरिफिकेशन भी हो जाता है वहां पे डेटा फीडिंग को चेक करके। इंश्योरिंग बैलेंस ट्रेनिंग अक्रॉस प्रैक्टिस एरियाज, एक सभी कामों का एक्सपीरियंस भी मिल जाए सीए स्टूडेंट को, तो ये भी एक पता चल जाता है कि 15 दिन में सभी एरिया, सभी फील्ड्स पे स्टूडेंट ने काम कर लिया है, टैक्सेशन, ऑडिट या लिटिगेशन या कंप्लायंसेस के वर्क में। ठीक है। अकाउंटेबिलिटी क्या है? यदि कोई भी इम्प्रॉपर सर्टिफिकेशन होता है तो वो डिसिप्लिनरी कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं अंडर आईसीआई के रेगुलेशंस में। फिर यहां पर एक एंट्री का एग्जांपल दिया गया है कि विच एंट्री इज एक्सेप्टेबल एंड विच इज नॉन एक्सेप्टेबल। एक्सेप्टेबल क्या है? पहले हम नॉन एक्सेप्टेबल देखते हैं राइट साइड में, जो कि रेड कलर से मार्क है, नॉन एक्सेप्टेबल। डेट January 10, 2026, एरिया जनरल, आवर्स 1, helped sir in office work and did whatever was told। ये गलत है। देखिए इसमें दो गलतियां हैं। एक तो एरिया जो है वो जनरल लिखा है, जनरल नहीं लिखना, आपको स्पेसिफिक एरिया लिखना ही है कि किस पर्टिकुलर स्पेसिफिक एरिया में आपने काम किया है। फिर यहां पर लिखा है कि हेल्ड सर इन ऑफिस वर्क एंड डिड व्हाटएवर वाज टोल्ड, जो भी सर ने कहा वो मैंने कर दिया। अब जो भी सर ने कहा में तो बहुत सी चीजें आ सकती है, तो इस तरीके की लैंग्वेज का यूज नहीं करना है, ये एक्सेप्टेबल एंट्री नहीं है। एक्सेप्टेबल एंट्री क्या है? वो लेफ्ट में है। डेट 10 January 2026, गुड। एरिया जीएसटी कंप्लायंस, यहां पर जीएसटी कंप्लायंस लिखा है, ठीक है, बिल्कुल सही, आवर्स 1। अब देखिए डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा है? असिस्टेड इन प्रिपरेशन एंड फाइलिंग ऑफ मंथली जीएसटी रिटर्न जीएसटीआर 3B फॉर वेरीफाइड इनपुट टैक्स क्रेडिट, रिकंसाइल्ड आउटवर्ड सप्लाईज विद अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड क्रॉस चेक्ड फॉर्म 2A। नो नीड टू राइट क्लाइंट नेम, क्लाइंट का नेम नहीं लिखना है। अब देखिए यहां पर इसने सभी चीजें लिख दी हैं कि जीएसटीआर रिटर्न 3B फाइल किया है, जिसमें कि आईटीसी भी वेरीफाई किया, इनपुट टैक्स क्रेडिट, आउटवर्ड सप्लाई जो सेल है उसे भी रिकंसाइल कर लिया है, अकाउंटिंग रिकॉर्ड से मैच कर लिया है, और जो जीएसटीआर 2 है जिसमें हमें परचेज का सारा डेटा दिखता है उसको भी एक बार क्रॉस चेक कर लिया है। तो इस तरीके से ये है प्रोफेशनल लैंग्वेज और यही है प्रोफेशनल मैनर जिस तरीके से ई डायरी में आपको फीडिंग करनी है। ये एक एग्जांपल है, राइट। फिर आते हैं हम कुछ एफएक्यूज हैं। कुछ एफएक्यू मैंने कुछ स्टूडेंट के फीडबैक के बेसिस पर बनाए हैं, और कुछ मैंने यहाँ पर इंटरनेट के भी थ्रू समझा है कि कुछ क्या क्या जनरल प्रॉब्लम्स जो हैं वो आई हैं, तो उसके बेसिस पे मैंने कुछ प्रॉब्लम प्लस सोल्यूशन ओरिएंटेड स्लाइड्स बनाई हैं, तो मैं उसे प्रेजेंट करता हूँ। अंडरस्टैंडिंग द ई डायरी सिस्टम, पहले तो ई डायरी को समझें, ई डायरी क्या है। तो फोर्टनाइटली कंसेप्ट होता है, दैट इज F1 एंड F2। F1 चलता है 1 to 15 और F2 चलता है 16 to 30 में, ठीक है। एंट्रीज डेली इसमें सेव करेंगे तो बहुत ही अच्छा है, और अटेंडेंस, ये आपका अटेंडेंस का पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करता है। यदि कोई लीव है, अब क्या होता है कि सबसे मेजर जो इशू है स्टूडेंट्स का, मुझे कई स्टूडेंट्स ने बताया भी कि जो अटेंडेंस है लीव कि उसमें लीव ऑटोमेटिकली मार्क हो रही है। अब ऑटोमेटिकली मार्क क्यों हो रही है? क्योंकि आपने उसमें डेटा फीड नहीं किया है, और अभी जो पोर्टल है वो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। यदि वहां पर आपने कोई भी फोर्टनाइट का डेटा नहीं भरा तो वो लीव ही मानकर चलेगा। आपने किसी दिन का डेटा नहीं भरा तो वो लीव मानकर ही चलेगा। पोर्टल उसी तरीके से डिजाइंड है, तो इसलिए बेटर यही है कि आप इसमें प्रिवेंशन लें और अपना डेटा डेली फीड करें। ये एक हैबिट ही बना ले तो ज्यादा अच्छा है। चलिए फिर हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, व्हाट टू रिकॉर्ड इन योर ई डायरी। अभी कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे कहा कि सर हमने ई डायरी में बस ये लिख दिया कि हमने जीएसटी का काम किया, डिड वर्क ऑन जीएसटी। मैंने कहा नहीं, इस तरीके से नहीं, आप प्रोफेशनली उसको लिखिए कि आपने जीएसटी में क्या काम किया। जैसे जीएसटी हमने लिटिगेशन का वर्क किया है अगर अपने ऑफिस में, तो लिखेंगे कि जीएसटी लिटिगेशन। कंप्लायंस का काम किया है तो लिखेंगे जीएसटी कंप्लायंस, ठीक है। प्रोसीजरल कोई वर्क किया है तो उसके लिए आप लिख सकते हैं, लेकिन लिखें उसको प्रोफेशनल लैंग्वेज में, राइट। अब यहाँ पर है कि
ICAI specifically states that client names are not required in e-diary entries. Focus on recording the type of work performed. Instead, GST return filing, income tax preparation, tax audit procedures, statutory audit work, accounting and bookkeeping tasks. ठीक है, अब आते हैं हम स्टाइपेंड डिक्लेरेशन रूल्स में. रिकॉर्ड स्टाइपेंड डिटेल इन द फोर्टनाइट फॉलोइंग रिसीप्ट. अब स्टाइपेंड का डेटा हमको कब फीड करना है? मैंने जैसे कि बताया कि अप्रैल मंथ का स्टाइपेंड यदि आपको मिला है तो आपको उसे मई के फर्स्ट फोर्टनाइट में F1 में ही रिकॉर्ड करना है. यहाँ पर एग्जांपल जनवरी का दिया गया है तो उसे फरवरी के F1 में रिकॉर्ड कर लेना है, जिससे कि प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन रहेगा, पेमेंट साइकिल का भी और स्टाइपेंड का भी. ठीक है. डेली वर्कफ्लो एंड सबमिशन प्रोसेस. डेली आप अपना उसमें डेटा एंटर करें, सेव करके रखें अपने डेटा को. ठीक है. और फोर्टनाइटली उसे सबमिट करें, मतलब F1 का सबमिशन F2 में. यहाँ पर एक अच्छी न्यूज है कि पहले जो सिस्टम में एरर्स आ रहे थे उसको रिजॉल्व कर दिया गया है और अब उतने एरर्स नहीं आते. जो पहले आप डेटा पूरा फीड कर दिया करते थे और वो डेटा जो है इरेज हो जाता था जब आप सबमिशन के लिए जाते थे, तो वो इश्यूज रिजॉल्व हो चुके हैं. अब वो इशू नहीं आ रहे. ठीक है. अब कुछ कॉमन इश्यूज हैं जो कि आते हैं कि सिस्टम एरर्स रिजॉल्व, जो कि सिस्टम में जो एरर्स पहले आ रहे थे वो रिजॉल्व हो चुके हैं. ऑटो सबमिशन एज लीव. अब क्या होता है कि आपने यदि कोई भी फोर्टनाइट में एंट्री नहीं किए है तो उसका सबमिशन ऑटो बेसिस पे मान लिया जाता है कि मतलब ये तो ऑटो सबमिट हो गया है. और ऑटो सबमिशन का मतलब है कि आपकी उस टाइम पीरियड में लीव मार्क हो चुकी है. तो ये सिस्टम है और स्टूडेंट्स को इस तरीके के मैसेजेस भी आए हैं ऑटो लीव के. तो इसलिए ध्यान रखें कि डेटा अपना डेली फीड करें. टेक्निकल सपोर्ट. टेक्निकल सपोर्ट के लिए कुछ 3 मेल आईडीज हैं, वो मैं अभी आपको आने वाली स्लाइड में बताऊंगा. कि टेक्निकल सपोर्ट के लिए यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है या पोर्टल एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, पोर्टल में कुछ इश्यू आ रहा है या कहीं पर भी आपको किसी भी और तरीके की क्वेरीज है ई डायरी से रिलेटेड, तो आप उन मेल आईडीज पर मेल कर सकते हैं. फोन नंबर तो होते ही हैं, उन पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं. तो मेल आईडी पे मेल करके और टिपिकली 24 घंटे के अंदर 24 आवर्स के अंदर रिस्पॉन्स मिल जाता है. अब किसी स्टूडेंट ने बोला कि सर 24 आवर में रिस्पॉन्स नहीं मिला, तो देखिए रिस्पॉन्स तो मिलता है. 24 नहीं तो 25 या 26 आवर में मिल जाएगा, बट रिस्पॉन्स मिलता है. इंस्टीट्यूट का रिस्पॉन्स मैकेनिज्म बहुत अच्छा है ई डायरी से रिलेटेड टेक्निकल सपोर्ट में. ठीक है. अभी यहां तक किसी की अगर कोई क्वेरी है किसी भी सीए स्टूडेंट की, तो हम यहाँ पर बीच में भी ले लेते हैं. यदि किसी भी स्टूडेंट की कोई क्वेरी हो तो. नक्षत्र जैन का कोई क्वेरी है सर? आई हैव वन क्वेरी. नक्षत्र, आप अपनी क्वेरी को टाइप करें प्लीज. अदरवाइज चाहे तो हैंड रेज करके भी आप करवा सकते हैं राहुल भाई. हाँ, हैंड रेज भी कर सकते हैं. कोई पूछना स्टूडेंट यदि उन्हें कोई क्वेरी है तो अपना हैंड रेज कर सकते हैं, उन्हें अनम्यूट कर लेंगे और उसके बाद है ना वो अपनी क्वेरीज बोलकर भी बता सकते हैं. हाँ हर्षित जी, एक मिनट. स्लाइड को स्टॉप शेयर. जी हर्षित बताएं. हर्षित आप अनम्यूटेड हैं, आप बोल सकते हैं. हेलो हाँ हर्षित बताइए. सर, मेरा नाम हर्षित तिवारी है जी. मैंने सर 5 फरवरी से सर आर्टिकलशिप स्टार्ट की थी. जी. तो सर मतलब मैंने फोर्टनाइट्स के डेटा भरे थे, पर सर मुझे ये इंफॉर्मेशन नहीं थी कि जो संडे जो डेटा है वो भी फिलअप करना है. तो सर मैंने मतलब संडे का डेटा नहीं फिल किया था. तो सर उसके बाद जब मैंने उसको सबमिट किया तो सर वो मतलब कि ऑटो सबमिशन मतलब 15 दिन बाद पूरा का पूरा मतलब फेब का लीव लग गया है मेरे में. सर ये अप्रूव वाला प्रोसेस भी मुझे नहीं पता था कि सीए मतलब सर 1 महीने के अंदर अप्रूव करेगा.
सर आस्क फॉर करेक्शन वाला मतलब ऑप्शन भी मेरा बंद हो गया, तो सर 1 महीने का लीव फरवरी मंथ में मेरा लग गया है, तो इसमें कोई कैसे मतलब इस चीज़ को रिजॉल्व किया जाए? देखिए, इस पर इंस्टीट्यूट का वर्किंग अभी चल रही है और उसके सोल्यूशन के लिए इंस्टीट्यूट जरूर कुछ टाइम में आएगा। और आप चाहें तो अपना ये पूरा क्वेरी जो है लिखकर इंस्टीट्यूट को मेल करें, क्योंकि ये टेक्निकल क्वेरी है। और क्योंकि आजकल करेक्शन वाला ऑप्शन भी बंद हो गया है, तो आपके या प्रिंसिपल के आपके एंड से तो कुछ भी नहीं हो सकता है। तो इस क्वेरी को आप अपने पूरा एक मेल में टाइप करके, और अभी मैं मेल आईडी से अभी आगे स्लाइड में बताऊंगा, तो आप उस पर मेल करेंगे तो आपको रिप्लाई मिल जाएगा। जी सर, थैंक यू। ठीक है हर्षित? ओके। जी सर। नक्षत्र जी ने मैसेज किया है, आई स्टार्ट माय आर्टिकलशिप फ्रॉम 18 अप्रैल 26 इन व्यू स्टेटस कॉलम इट शोज अप्रैल 18 अप्रैल टू 15 मई F1। ये भी टेक्निकल एरर है, क्योंकि इसमें F2 आना चाहिए, वो भी 18 अप्रैल से 30 अप्रैल का, बट ये शो कर रहा है 18 अप्रैल से 15 मई। तो अगेन नक्षत्र, इट्स ए टेक्निकल एरर, और इसके लिए आपको मेल ही करना पड़ेगा इंस्टीट्यूट, क्योंकि फर्स्ट डेट 1 से 15 तक F1 होता है, दैट इज फर्स्ट फोर्टनाइट, और 16 से लेके 30 अप्रैल सेकेंड फोर्टनाइट होना चाहिए, तो F1 तो आना ही नहीं चाहिए। तो इट्स अगेन अ टेक्निकल इशू। और किसी की कोई क्वेरी हो तो बताएं। मोस्टली ई डायरी में मैं जो समझाऊं वो टेक्निकल क्वेरीज ज्यादा हैं पोर्टल से रिलेटेड, रेदर देन कोई पर्टिकुलर क्वेरी की कोई चीज समझ में नहीं आई, क्योंकि ई डायरी में ऐसा मतलब इतना कॉम्प्लेक्सिव नहीं है इनकम टैक्स एक्ट की तरह, क्योंकि समझना है ना आए, सिंपल ही है। हाँ शिवानी बताइए। हाँ सर, मुझे पूछना था कि जैसे अभी हर्षित ने पूछा लाइक सैटरडे संडे एंड हॉलीडे, सो वी नीड टू मेंशन दैट आल्सो इन ई डायरी। यस, हॉलीडे वहां पर मेंशन करने का आता है। तो हॉलीडे का ड्रॉप डाउन में आता है क्या वो हॉलीडे? जी जी, आता है वहां पे। अगर मेरा पब्लिक हॉलीडे है तो दैट आल्सो मेंशन लाइक फर्स्ट वे इज अ पब्लिक हॉलीडे। देखिए देखिए, उसमें ड्रॉप डाउन में जो मुझे याद है, मैंने काफी दिनों पहले देखा था, तो उसमें आता तो है ऑप्शन बहुत नीचे, और अगर उसमें आता है तो आप भर दें तो ज्यादा अच्छा है, रेदर देन वो लीव मार्क हो जाए। नो नो, फर्स्ट में इज अ पब्लिक हॉलीडे, तो माय फ्रेंड्स आल्सो हैव द क्वेरी कि उसमें हम लोग को हॉलीडे था, व्हाट शुड वी मेंशन इन दैट फॉर फर्स्ट में? हॉलीडे ही मेंशन करेंगे आप उसमें। हॉलीडे ही मेंशन लाइक सैटरडे यस, संडे आल्सो वी आर हैविंग हॉलीडेज। तो आप हॉलीडे ही मेंशन करेंगे उसमें। Or if we worked on Saturday, Sunday, like sometimes the due date of audits are there. That time we worked on holidays. So what we will mention, like तो holiday आप or उसमें we work? फिर आपने जो काम किया है सैटरडे संडे में, वो काम आप पूरा उसमें मेंशन करेंगे, वॉट एवर Okay, वर्क यू fine, हैव sir. डन। Okay, sir. Thank you. ओके, वेलकम। और क्वेरीज किसी की? सर राहुल सर, मैं थोड़ा इंटरप्ट करना जी चाहूंगा। अनिमेश भाई। अगर जैसे भी आपने भी बोला कि मोस्ट ऑफ द क्वेरीज टेक्निकल क्वेरीज हैं स्टूडेंट्स की, आपने भी सुनी होंगी। तो सर रिक्वेस्ट है नितिन सर आपसे, सर अपन ऐसा कर सकते हैं कि सिकासा से या सीआईआरसी से एक लेटर बना के इंस्टीट्यूट को भेज सकते हैं, जिससे क्वेरीज जल्दी सॉल्व हो जाएंगी। देखिए देखिए, उस केस में मैं एक ही बात कहूंगा कि इफ यू हैव क्वेरीज, आप मुझे क्वेरीज का लेटर आप दे दीजिए, उसे हम सिकासा के बिहाफ पे एक एफएक्यू जो है इंस्टीट्यूट से रिकमेंड कर हाँ देंगे। सर, ठीक है ना? वो ज्यादा अगर सही होगा, क्योंकि अभी जो हाँ, क्वेरीज आ रही है वो टेक्निकल है, जो सर ने कहा कोई ऐसा समझने लायक कॉन्सेप्ट नहीं है कि इनकम टैक्स का प्रोविजन समझ नहीं आ हाँ, रहा अपन को। नहीं, वो तो बेसिक बिल्कुल। बेसिक चीजें ये हैं। शिवानी अग्रवाल फिर से हैंड रेस किया है, इनकी सुन लेते हैं। जी शिवानी जी शिवानी। बताइए। Yeah, this so ये ask for correction जो window है, so how many days we can do it for ask for correction? देखिए, क्या है कि उसमें आप जब जैसे फर्स्ट से 15 का आपने डेटा 16 से 13 में सबमिट कर दिया, अब प्रिंसिपल को उसके 2 फोर्टनाइट्स मिलते हैं उसे चेक करके अप्रूव करने में। तो वो जो 2 फोर्टनाइट्स का टाइम है, उसमें प्रिंसिपल उसे आस्क फॉर करेक्शन के लिए क्लिक करते हैं, मतलब ऑप्ट करते हैं। तो फिर स्टूडेंट के पास वो जाता है कि भाई वहां पर उसको एडिट करना है अपने डेटा। तो जो दो नहीं फोर्टनाइट अभी जी। ओके, नहीं नहीं, अभी मेरा जो डेटा है, सपोज आई हैव ज्वाइन जनवरी, तो मेरा लॉक हो गया है बिकॉज आई एम ठीक है। नॉट अवेयर, आई नीड टू फिल। तो मुझे अप्रैल में मेल आया है कि योर ई डायरी हैज लॉक्ड, ऑटो लॉक्ड।
ओके, तो जनवरी का आपने डेटा फिल नहीं किया था? Jan to March का I have not filled the data. तो उसमें उस केस में मुझे मैसेज आया है, email goes to principal as well as me that I have not filled the e-diary. So ओके, it's auto logged and marked as an absent. So in that case, what should we do? ये फिर आपको इंस्टीट्यूट से ही फॉलो अप करना होगा इसके लिए, क्योंकि Okay, I need to इंस्टीट्यूट ही raise the यस query. यस यस, क्योंकि इंस्टीट्यूट के हाथ में है अगर वो पोर्टल ओपन करे उसको, और अभी तो शायद पोर्टल ओपन करने का ऐसा कुछ है नहीं, बट इस तरीके की बहुत सारे इश्यूज हैं, क्योंकि कई बच्चों के साथ ऐसा हुआ है कि उनके There are एब्सेंट many मार्क हो articles in चुके हैं। my firm, they are like not राइट available, so it's not like auto closed. राइट राइट, ऐसा बहुत हुआ है, और यहाँ पर मैं ग्वालियर में हूँ, यहाँ पर भी बच्चों के साथ बहुत हुआ है इस तरीके का। तो इंस्टीट्यूट इस पर रिजॉल्व तो करेगी इस मैटर को, क्योंकि बहुत ज्यादा हो चुके हैं ये इश्यूज। हाँ, तो इसलिए, और आप इसको राइट में पहुंचता है ना डेटा की भाई कितने बच्चों को किस किस टाइप की प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो फिर वो उसके लिए एफएक्यू और पोर्टल में कुछ ना कुछ सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। okay sir, thank you sir. ओके, आर्यन गुप्ता ने, सर आई हैव अ क्वेरी, आर्यन की क्वेरी है, who faced it in recent days that there is a work I did in relation to bank concurrent audit, but in scroll down bank audit or concurrent option is not available, then what should I put in? आप audited assurance उसमें select कर सकते हैं, क्योंकि बैंक ऑडिट जो होता है वो ऑडिट में ही आता है आर्यन, तो आप उसमें ऑडिट सिलेक्ट कर सकते हैं। गुरमीत की क्वेरी है, वी वर्क ऑन हॉलीडे डज इट विल ऑटो इफेक्ट आवर कंप्लीशन डेट ऑफ आवर आर्टिकलशिप सिमिलरली फॉर लीव्स टेकन? नहीं गुरमीत, आपने मान के चलिए अपनी आर्टिकलशिप स्टार्ट करी है 1 अप्रैल 2026 को फॉर एग्जांपल, तो वो कंप्लीट होगी 31 मार्च 2028, ठीक है? 2 साल का टाइम पीरियड ऐसे काउंट होगा, और हॉलीडेज पे जो आप काम कर रहे हैं तो वो आप एक्स्ट्रा ही सीख रहे हैं। चलिए, भूविका शर्मा जी की क्वेरी है, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग भूविका सर, डू यू to some technical error I could not submit my e-diary for April F1, as a result it is showing as holidays for that period. भूविका जी, ये सभी की प्रॉब्लम है, और आपने लिखा है कि आपने मेल भी कर दिया है, तो आप इंस्टीट्यूट का वेट ही करें और उस पर क्या इंस्टीट्यूट का रिप्लाई आता है। और आप चाहें तो नितिन सर से भी इस रिगार्डिंग आप लोग एक रिप्रेजेंटेशन बनाकर उन्हें दे सकते हैं, तो सर डेफिनेटली उसको आगे फॉरवर्ड करेंगे, और कुछ ना कुछ रिजोल्यूशन तो आएगा इस पे, क्योंकि ये बहुत इस तरीके के बहुत एरर्स हो चुके हैं और बहुत इश्यूज हैं ऐसे, तो कुछ ना कुछ रिजोल्यूशन तो जरूर आना ही है उसमें। और किसी की कोई क्वेरी हो तो Aryan. So, sir, I have selected audit as main task and substantive procedures and also other option. Then I mentioned concurrent audit in other task column. सही है आर्यन, बिल्कुल सही किया आपने। बैंक का नाम मत लिखिएगा, ट्राई टू अवॉइड क्लाइंट्स नेम या किसी भी पर्टिकुलर नाम मत लिखिए। हर्ष सर, I submitted my FAB e-diary, but it has not been approved by principal yet. फैब की ई डायरी आपने मार्च में की होगी, और मार्च से 2 फोर्टनाइट तो निकल चुके हैं। वेदर इट विल बी कंसिडर्ड एज लीव और इट विल बी ऑटो अप्रूव, ऑटो अप्रूव ही माना जाएगा, क्योंकि यदि प्रिंसिपल कुछ नहीं करते हैं, अप्रूव नहीं करते हैं, तो वो ऑटो अप्रूव ही माना जाएगा। आर्यन ओके सर, और किसी की कोई क्वेरी हो तो टाइप करें, नहीं तो फिर हम एफएक्यू वाली स्लाइड पर आगे बढ़ेंगे। या आप रेज हैंड भी कर सकते हैं। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड, करेक्शन प्रोसेस फॉर मिस्ड सबमिशंस। यदि आप कोई सबमिशन नहीं कर पाए, आप ई डायरी में अपना कोई भी डेटा फिल नहीं कर पाए हैं, ठीक है, तो वो उसको लीव ही मान के चलता है। अब इधर क्या कर सकते हैं आप, यदि आपके पास टाइम है, जो अभी क्वेरीज आई थी तो उनमें तो टाइम ही नहीं था, किसी की जनवरी से मार्च तक का लीव हो चुका था या टाइम पीरियड निकल चुका था, बट यदि आपका अभी ये हाल ही में हुआ है इस तरीके का, तो आप करेक्शन के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं, और प्रिंसिपल जो है उस रिक्वेस्ट को अप्रूव करेंगे, ठीक है, अपने डैशबोर्ड लॉगिन से, और फिर वापस से स्टूडेंट्स के पास वो चला जाएगा, और स्टूडेंट उसे 7 डेज के अंदर
करेक्ट करना है, उस डेटा को एडिट करना है या फिल करना है, जो भी एज द केस में भी, और स्टूडेंट उसे करेक्ट करके सबमिट करेंगे और फिर प्रिंसिपल के पास भी सबमिशन से 7 डेज होता है उसे अप्रूव करने का। लेकिन ये हमेशा ध्यान रखना है कि एक फोर्टनाइट पे एक ही करेक्शन की अपॉर्चुनिटी अवेलेबल होती है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, एक फोर्टनाइट पे एक ही करेक्शन अपॉर्चुनिटी अवेलेबल होती है, दैट्स इट। तो इसीलिए एक्यूरेसी के साथ ही सबमिशन कीजिएगा, कोई भी गलती की गुंजाइश करेक्शन वाले मेथड में, एडिट वाले प्रोसेस में नहीं छोड़िएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं हम। अप्रूवल टाइमलाइन एंड ऑटो अप्रूवल। देखिए, अप्रूवल टाइमलाइन तो आपको पता है कि फाइनल सबमिशन जो जब स्टूडेंट सबमिट करता है तो F1 का डेटा F2 तक सबमिशन करना होता है उसे, इस तरीके से चलता है। अब ऑटो अप्रूवल जो होता है, अगर प्रिंसिपल कोई भी एक्शन नहीं लेता है, जो कि अभी एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया था हमसे चैट में, तो वो सिस्टम उसे ऑटो अप्रूव कर देता है, ठीक है। और प्रिंसिपल यदि रिव्यू करता है, मतलब आस्क फॉर करेक्शन के लिए, तो 7 डेज वाला कंसेप्ट हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा था। बट यहाँ पर एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि अपने प्रिंसिपल के साथ आप रेगुलरली कोऑर्डिनेशन बनाए रखें, जिससे कि वो टाइमली आपके ई डायरी को, अटेंडेंस को अप्रूव भी करता रहे। और ऑटो अप्रूवल के बार बार सीनेरियो जो होते हैं, बार बार वो चीजें हो, तो उसको अवॉइड करें, क्योंकि ऑटो अप्रूवल हर बार होना भी ठीक नहीं है। तो इसलिए ये भी ध्यान रखें कि आपके प्रिंसिपल ही उसे अप्रूव कर रहे हैं, क्योंकि देखिए सिस्टम में सारी चीजें जनरेट होती हैं, सिस्टम ये बता देगा कि ये ऑटो अप्रूव हुआ है। जब भी आप अपना एक डॉक्यूमेंटेशन 2 साल बाद निकालेंगे तो वहां पर ये दिखेगा कि कितना डेटा ऑटो अप्रूव था और कितना डेटा प्रिंसिपल ने अप्रूव किया है, ठीक है। तो ये डेटा आ सकता है, ठीक है। तो इसलिए कोशिश यही करें कि अपने प्रिंसिपल के साथ रेगुलरली कोऑर्डिनेशन बनाए रखें और टाइमली अप्रूवल्स करवाते रहें, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड, टर्मिनेशन डेट एंट्री गाइडलाइंस। अब देखिए, जो टर्मिनेशन होता है सीए स्टूडेंट्स को, टर्मिनेशन मतलब या तो आर्टिकलशिप ही खत्म हो गई या फिर फॉर्म को चेंज कर रहे हैं, मोस्टली फॉर्म को चेंज करने वाला ही होता है। अब मुझे ये बताइए सभी सीए स्टूडेंट्स चैट बॉक्स में आंसर करके कि आपको यदि किसी फॉर्म में, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में अपनी आर्टिकलशिप ट्रांसफर करनी है तो उसकी टाइम लिमिट क्या होती है, मतलब कितने टाइम लिमिट के अंदर आपको आर्टिकलशिप आप अपनी ट्रांसफर कर सकते हैं एक सीए फॉर्म से दूसरी सीए फॉर्म में, या इस तरीके की कोई टाइम लिमिट होती भी है या नहीं होती है, ये भी बताएं। शिवानी का मैसेज है विद इन अ ईयर, भूविका शर्मा विद इन अ ईयर, विद इन 1 ईयर। और कोई आंसर इसके अलावा? शिवानी, yes, we have time limit for transfer. बिल्कुल सही जवाब है, फर्स्ट ईयर नो डिस्ट्रिक्शन। गुरमीत, 1 साल के अंदर आप अपना ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। जिस भी सीए फॉर्म में आप अपनी आर्टिकलशिप ट्रेनिंग कर रहे हैं, उस सीए फॉर्म से यदि आपको दूसरे सीए फॉर्म में ट्रांसफर लेना है तो आप 1 साल के अंदर, मतलब आर्टिकलशिप आपने जब अपनी स्टार्ट की है, फॉर एग्जांपल 1 मई को आपने अपनी आर्टिकलशिप स्टार्ट की है, तो 30 अप्रैल 2027 तक आप ट्रांसफर ले सकते हैं दूसरे सीए फॉर्म में दूसरे प्रिंसिपल के अंदर, with 1 year without approval of ICI, after that approval of ICI. ओके माधव, तो 1 साल का कंसेप्ट ये हमें समझ में आ गया, ठीक है। बैक टू द स्लाइड। चलिए स्लाइड पर आते हैं। When to enter termination date only when changing forms during articleship. This marks the end of your training period with the current principal. जब भी आपको ट्रेनिंग अपनी खत्म करनी है प्रिंसिपल से और दूसरे प्रिंसिपल के अंडर जाना है, तो फिर आप उस टर्मिनेशन डेट को एंटर करते हैं और सबमिट करें। लेकिन जो भी आप डेट एंटर करेंगे, एक बार सबमिट हो गई, बाद में वो चेंज नहीं हो सकती, ठीक है।
Important restriction: once entered, the date cannot be changed. During gap months between firms, you cannot access the e-diary. देखिए, यदि आपकी आर्टिकलशिप स्टार्ट हुई है फॉर एग्जांपल 1 जनवरी 2026 को और आपने ट्रांसफर कर लिया है किसी दूसरे सीए फॉर्म में, दूसरे प्रिंसिपल के अंडर 1 अक्टूबर 2026 को, ठीक है, 10 महीने के बाद। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि आपकी लास्ट टर्मिनेशन डेट क्या है, जो भी करंट प्रिंसिपल है। फॉर एग्जांपल उनके अंडर आपकी लास्ट टर्मिनेशन डेट थी 31 अगस्त, मतलब 1 जनवरी से लेके 31 अगस्त तक आपने एक प्रिंसिपल के अंडर काम किया। फिर 1 अक्टूबर से आपने अपना आर्टिकलशिप का टेन्योर कंटिन्यू किया, स्टार्ट किया, और पूरा जो है 8 और 24 16 महीने का जो टाइम पीरियड था आपने सेकेंड प्रिंसिपल के अंडर कंटिन्यू करेंगे। तो जो बीच का जो महीना है दैट इज द मंथ ऑफ सितंबर मंथ में आप ई डायरी को एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि उस टाइम पीरियड पे आपने ना ही कोई आर्टिकलशिप की है, ना ही कोई काम किया है किसी भी प्रिंसिपल के अंडर। तो उस एक महीने आप ई डायरी को कुछ भी उसमें फिलअप या डेटा फीड नहीं करेंगे, ठीक है। तो 31 डेट आपकी टर्मिनेशन डेट मानी जाएगी और दूसरे प्रिंसिपल के अंडर आपकी 1 अक्टूबर स्टार्टिंग डेट मानी जाएगी, मतलब कंटिन्यूएशन ऑफ द आर्टिकलशिप पीरियड। तीसरा है स्टूडेंट शुड कंफर्म विद प्रिंसिपल बिफोर एंटरिंग टू अवॉइड एरर्स। देखिए, ये थोड़े सेंसिटिव मैटर्स होते हैं, तो इसमें सबसे पहले अपने प्रिंसिपल से कंफर्म कर लें और उसके बाद ही उसे सबमिट करें टर्मिनेशन डेट, ठीक है, जिससे कि कोई गलती ना रहे। फिर आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, टाइमलाइन समरी ऑफ ई डायरी प्रोसेसेस। डेली एंटर एंड सेव, डेली अपने डेटा को एंटर करें और सेव करें, ठीक है, और फोर्टनाइट पे उसे सबमिट करें, अगले फोर्टनाइट पे, ठीक है। पोस्ट सबमिशन प्रिंसिपल रिव्यू, प्रिंसिपल हैज अप टू 1 मंथ टू अप्रूव और रिक्वेस्ट करेक्शन। प्रिंसिपल क्या 2 फोर्टनाइट्स होती हैं, दैट इज 1 मंथ उसे अप्रूव करने के लिए या फिर करेक्शन के लिए आस्क फॉर करेक्शन के लिए, ठीक है। करेक्शन विंडो, यदि करेक्शन विंडो की जरूरत है तो वो 7 दिन का टाइम रहता है, उसमें स्टूडेंट है 7 डेज टू रीसबमिट, मतलब आस्क फॉर करेक्शन वाला ऑप्शन चूज किया प्रिंसिपल ने, हमने पहले भी डिस्कस किया, तो स्टूडेंट उसे 7 डेज के अंदर एडिट करे, करेक्ट करे, और फिर प्रिंसिपल उसे 7 डेज के अंदर अप्रूव भी करता है। 7 डेज एक्सक्लूसिव है, मतलब स्टूडेंट 7 डेज में एडिट करेक्शन कर सकता है, फिर उसके सबमिट करने के बाद प्रिंसिपल के पास 7 डेज और हैं उसे अप्रूव या अप्रूव ही करने के लिए, क्योंकि 1 टाइम ही होता है एज फॉर करेक्शन का ऑप्शन। ऑटो अप्रूवल, अगर प्रिंसिपल अप्रूव नहीं करता है तो वो ऑटो अप्रूव हो जाती है 1 महीने। की टेकअवेज एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस, देखिए, रिकॉर्ड वर्क टाइप्स नॉट क्लाइंट नेम, क्लाइंट का नाम नहीं डालना है, आपने जो काम किया वो डालिए। डेली अपडेट करें, ये यूज करेक्शन विंडो वाइजली। करेक्शन विंडो चूंकि 1 टाइप ऑप्शन है तो उसे बहुत ध्यान से समझदारी से ही करें, क्योंकि एक ही अपॉर्चुनिटी है वो, और अपने प्रिंसिपल के साथ रेगुलर कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेशन बनाए रखें, हम पहले भी इस स्लाइड में देख चुके हैं। इसमें एक ध्यान देने वाली चीज ये है कि ई डायरी सबमिशन इज मैंडेटरी टू अवॉइड लीव बीइंग रिकॉर्डेड अगेंस्ट अटेंडेंस। जैसा कि हम देख रहे हैं अभी जो एक कॉमन प्रॉब्लम है वो यही है कि भाई काम तो किया, अटेंडेंस तो सर हमने लगा दी, बट हमारी लीव मार्क हो गई है। जैसा अभी शिवानी ने भी बताया कि जनवरी से मार्च तक उन्होंने काम किया बट लीव मार्क हो गई है, तो उसका सोल्यूशन तो खैर इंस्टीट्यूट करेगा ही कुछ ना कुछ। तो इसे थोड़ा सा अवॉइड करें, डेली अपना डेटा मेंटेन करें और सबमिशन करते ही रहें, और मेंटेन कंसिस्टेंट अपडेट टू इंश्योर कंप्लायंस एंड एक्यूरेट ट्रेनिंग डॉक्यूमेंटेशन। देखिए, ई डायरी का जो डेटा है आगे भी आपको बहुत काम आएगा, क्योंकि जब भी आप आगे अपने जॉब्स के लिए जब आप सीए क्वालिफाई कर जाएंगे, सीए बनेंगे, जैसा अनुज सर ने बताया, ऑल आर फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट, सभी एफसीएज ही हैं यहाँ पे एक तरह से। तो आप लोगों का पास एक ये बहुत ही अच्छा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है जो बताएगा, जो सेल्फ स्पीकिंग होगा कि भाई आपने क्या क्या काम किया अपनी आर्टिकलशिप के दौरान, और प्रिंसिपल जब उसे अप्रूव करता रहेगा टाइम टू टाइम, तो उससे बड़ा कोई एविडेंस, कोई सबूत ही नहीं है, कोई प्रूफ ही नहीं है कि आपने ये काम अपने आर्टिकलशिप के दौरान किया, ये सीखा, आपकी जो लर्निंग्स है वो सब उसमें आएंगी। तो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ई डायरी, ठीक है। अब यदि आपको कोई टेक्निकल क्वेरीज है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप इन 3 ईमेल आईडी जो इंस्टीट्यूट ने दे रखी हैं, इन पर आप अपनी टेक्निकल क्वेरीज को भेज सकते हैं।
आप सभी स्टूडेंट्स चाहें तो इन ईमेल आईडीज को लिख भी सकते हैं. यू कैन राइट इट डाउन ऑल्सो. mss@ikai.in. दूसरी ईमेल आईडी है sroart@ikai.in और थर्ड ईमेल आईडी है rk@ikai.in. इन 3 ईमेल आईडीज पर आप अपनी क्वेरीज को लिखकर इंस्टीट्यूट को भेज सकते हैं और वो इसका सोल्यूशन करेगा. ठीक है. अब जितने भी स्टूडेंट्स की और भी कोई क्वेरीज हैं तो वो हम अभी टेकअप कर लेते हैं. जो भी स्टूडेंट कुछ भी पूछना चाहते हैं तो वो अपनी क्वेरीज को या तो चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, रेज हैंड कर सकते हैं, तो हम उन्हें अनम्यूट करके और उनके क्वेरीज को टेकअप कर लेंगे. सानिया सर, अगर हमने 2 साल कंप्लीट हो जाए उसके बाद ई डायरी कैसे क्लोज करें या फिर वो ऑटो क्लोज हो जाएगी? नहीं सानिया, इसमें आपको ई डायरी क्लोज करना ही होगी क्योंकि आर्टिकलशिप कंप्लीशन का फॉर्म होता है, उसे भी हालांकि अब तो वो एक फॉर्मेलिटी रहेगा बट आर्टिकलशिप कंप्लीशन का भी एक प्रिंसिपल से आएगा. तो वो आई थिंक चूंकि अभी ये नया कंसेप्ट है, 1 जनवरी 2026 से ही लॉन्च है, तो जो इसमें लेटेस्ट जो आएगा वो यही होगा कि 31 2027 को क्या होगा वो देखना है. तो इसमें कुछ कंप्लायंस तो होगा, कुछ डॉक्यूमेंटेशन तो लगेगा प्रिंसिपल के साइड से, तो वो शायद इसमें हो सकता है. सर, संडे शुड बी मार्क्ड एज वीक ऑफ. देखिए, वीक ऑफ ही होता है, वैसे तो छुट्टी होती है संडे की, इट्स अ हॉलीडे, बट यदि आपने काम किया है, लर्निंग की है, तो उस डेट में भी आप सिलेक्ट करके डाल सकते हैं. चूंकि प्रिंसिपल ही उसको अप्रूव करेगा आपका, तो प्रिंसिपल पूरा चेक करेगा डेटा और करेंगे और फिर उसी के बाद ही वो उसे अप्रूव करेंगे. प्राची अग्रवाल का क्वेश्चन है, सर कंप्लीशन ऑफ 1 मंथ के बाद विद इन 15 डेज में अप्रूव करवाना पड़ेगा सीए से? नहीं, इसको आपने उल्टा लिख दिया. इसमें ये है कि जिस सबमिट किया है अगले फोर्टनाइट में, ठीक है, जब भी आपने सबमिट किया है वहां से 2 फोर्टनाइट काउंट होंगे. ठीक है ना? तो 2 फोर्टनाइट मतलब लगभग महीना भर ही हो गया, लेकिन आप 2 फोर्टनाइट में अपने प्रिंसिपल से उसे अप्रूव करा सकते हैं, प्रिंसिपल अप्रूव करेंगे. ओके प्राची? सर, एक बच्चे का डाउट है कि अगर सर वीक में 2 डेज ऑफ है, सैटरडे संडे, तो जी. सो वी मार्क वीक ऑफ एज 4 डेज, सैटरडे एंड संडे. ऑब्वियसली अगर सैटरडे संडे कोई काम नहीं है तो वीक ऑफ ही जाएगा. अगेन मैं कह रहा हूं, उसे प्रिंसिपल अप्रूव करेगा. आप उसे वीक ऑफ कर देंगे, उसके बाद आपके प्रिंसिपल अप्रूव करेंगे उसे. ठीक है ना? ओके. किसी ने हैंड रेस किया था, उदित नारायण ने. सर, कुछ बच्चों की क्वेरीज हैं कि सिंस हर 15 दिन में हमें हर फोर्टनाइट अपडेट करनी होती है और सबमिट करने से पहले हमें उसमें स्टाइपेंड डिटेल्स अपडेट करने होते हैं. नहीं, सर, देखिए, हाँ बताइए. जब तक हम उसमें स्टाइपेंड डिटेल्स नहीं डालते हैं, अमाउंट नहीं डालते हैं, तो वो सबमिट नहीं होता. तो सर, ऐसा कईयों के साथ हो रहा है कि कई जगह प्रिंसिपल्स 2 महीने की स्टाइपेंड एक साथ भी देते हैं या ऐसा करते हैं. तो उस केस में क्या करना चाहिए एक स्टूडेंट को? देखिए, अगेन जब स्टाइपेंड का डेटा सेकंड फोर्टनाइट में आपको देखिए नॉर्मली स्टाइपेंड मिलता है और उसका डेटा नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट फोर्टनाइट में सबमिट करते हैं. तो नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट फोर्टनाइट में आपको स्टाइपेंड का भी डेटा सबमिट करना होता है. तो इसलिए वो ये भी एरर दे रहा है कि भाई आपने स्टाइपेंड का डेटा नहीं डाला है, तो वो सबमिट नहीं करने दे रहा होगा. तो इसलिए स्टाइपेंड का भी डेटा डाल के सबमिट करें. अब बात आती है 2 महीने के इकट्ठे स्टाइपेंड की. तो यहाँ पर ये है कि प्रिंसिपल से आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो हर महीने स्टाइपेंड का डेटा मेंटेन करें और हर महीने स्टाइपेंड पे करें, जिससे कि वहां पर ई डायरी में स्टाइपेंड का डेटा हर महीने मेंटेन किया जाए, क्योंकि ई डायरी में हर महीने का ही डेटा मेंटेन करना है. स्टाइपेंड की भी पेमेंट की एंट्री हर महीने ही रिकॉर्ड होगी उसमें. तो 2 महीने का तो अब कोई ऑप्शन ही नहीं है. और यदि 2 महीने का हम डालेंगे भी तो अमाउंट बढ़ जाएगा. करेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, स्टाइपेंड मिल रहा है 5,000 रुपीज और प्रिंसिपल ने 10,000 रुपीज का पेमेंट किया, तो आप तो उसमें 10,000 भर देंगे, बट मंथ क्या सिलेक्ट करेंगे? मंथ तो एक ही आएगा उसमें सिलेक्ट करने के लिए, है ना? तो इसलिए ये थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन बनाए. और अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम इशू आ भी गया है
तो फिर इंस्टीट्यूट को ही आपको एक मेल लिखना होगा। तो हो सकता है इंस्टीट्यूट यहाँ पर उस पर्टिकुलर लॉगिन पर ये ऑप्शन डाल दे कि भाई 2 महीने का ऑप्शन उस ड्रॉप डाउन में आ जाए। फॉर एग्जांपल आपने चूज किया, उसमें बाय डिफॉल्ट वैसे तो अप्रैल मंथ आ गया, ठीक है। अब उसमें हो सकता है कि 2 ऑप्शन आ जाए कि अप्रैल या फिर अप्रैल एंड मई, इस तरीके से। तो ये अब ये पोर्टल का ही है चूंकि वर्किंग, इसमें आप और ये मैं तो कुछ नहीं कर सकते। तो इसके लिए इंस्टीट्यूट को जब पता चलेंगी ना नई नई प्रॉब्लम्स, तो इंस्टीट्यूट उसका सोल्यूशन कुछ ना कुछ निकालेगा। तो पर्टिकुलर यदि 2 महीने का तो हो सकता है कि इंस्टीट्यूट उस पर्टिकुलर स्टूडेंट के लॉगिन पर ही ये फीचर दे दे कि भाई 2 महीने का प्रॉब्लम है, जेन्युइन है, तो ये अलाउ कर दें, या वंस इन ईयर कर दें इसे अलाउ, या वंस इन 6 मंथ करते हैं, वो जो भी इंस्टीट्यूट का सही है। ओके सर, थैंक यू। वेलकम। सर एक सवाल था जो कि बहुत सारे सीए फर्म्स का भी है और बच्चों का भी है। जैसे कि उदित ने पूछा कि 2 महीने, या फिर मैं कहता हूँ क्वार्टरली बहुत सारी फर्म्स देते हैं, जो ट्रेडिशनल फर्म्स है, पुरानी फर्म्स है, वो क्वार्टरली स्टाइपेंड वगैरह ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो क्या उस केस में हम ये कर सकते हैं कि जो भी बच्चे हैं वो एक बार तो स्टाइपेंड जैसे कि 5,000 है या 10,000 जो भी उनकी फर्म का है मंथली वो भर दे, उसके बाद जो भी आ रहा है वो अलग रखें, अगर अपन देखा जाए तो? नहीं, देखिए आप उसे अलग भी रखेंगे तो ये थोड़ा सा टेक्निकली गलत इसलिए हो जाएगा क्योंकि जो इंस्टीट्यूट के पास डेटा मेंटेन होगा ई डायरी में, वो तो उतने ही अमाउंट का हुआ ना। फॉर एग्जांपल 24 मंथ का अमाउंट हुआ 5,000 के हिसाब से 1,20,000, ठीक है। बिल्कुल। अब आप तो एक क्वार्टर का एक ही 5,000 है, उसमें आप फीड करेंगे तो 8 क्वार्टर होते हैं 2 साल में, तो 8 क्वार्टर के केवल 40,000 रुपए अपडेट होंगे उसमें, बाकी का 80,000 तो आपका ड्यू निकलेगा। नहीं सर, मैं दूसरी चीज कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ हर मंथ हम 5,000 भर दें और जो ठीक आ है, रहा है उसको हम अलग रखें। हर मंथ हम एक बार तो 5,000 डाल देते हैं, ठीक है। क्योंकि होता क्या है कि लीव्स वगैरह भी कैलकुलेट होती है। जैसे कि बच्चा 10 दिन कम गया, लीव ले ली, लेकिन अब बहुत सारी फर्म्स होती है कि लीव नहीं दिखाती है, क्योंकि नहीं तो आर्टिकलशिप पीरियड एक्सटेंड होता है। तो हम उस चीज को अलग रखें, और जो 5,000 है, जो भी फर्म ने तय कर रखा है, 5 है या 10 है, जो भी है, वो हम एज इट इज हर मंथ डालते जाएं। अब देखिए शिवांग, इसे मैं इसलिए हाँ या ना नहीं कह सकता हूं क्योंकि ये टेक्निकली गलत है। आप ये समझिएगा कि आपने तो इस तरीके से डेटा डाल दिया, बट वहां पर ये ऑप्शन पूछता है मोड ऑफ पेमेंट। मोड ऑफ पेमेंट में यूपीआई पूछता है। कल को इंस्टीट्यूट ने प्रूफ मांगा कि आप अपना पेमेंट का प्रूफ दे दीजिए, तो कहां से प्रूफ देगा प्रिंसिपल? वो तो कह देगा भाई मेरा तो 3 महीने में इकट्ठा पेमेंट किया मैंने, वहां आपने एक एक महीने की एंट्री दिखाई है। तो ये थोड़ा सा इम्प्रोवाइजेशन यहाँ पर ये करना पड़ेगा, और सीए फॉर्म्स को भी अब समझना पड़ेगा कि ई डायरी का कंसेप्ट जो इंस्टीट्यूट लेकर आया है। और आई होप कि इस तरह का एक वेबिनार मेंबर्स के लिए भी हो, जिसमें मेंबर्स को, प्रिंसिपल्स को ये बताया जाए कि भाई उनको अब क्या क्या ई डायरी में नेसेसरी, उनके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, फॉर्मेलिटी, और उनको भी क्या क्या चेंजेस करने हैं। बट ये जो 3 महीने में एक बार स्टाइपेंड का जो ये है सिस्टम, वो तो वैसे तो मंथली ही होना चाहिए, बट लेकिन अगर कोई 3 महीने वाला कर भी रहा है, पहले चल भी रहा था, बट ई डायरी वाले कंसेप्ट में तो आई थिंक ये नहीं चल पाए। वहां तो मंथली ही ऑप्शन चूज करना पड़ेगा, क्योंकि मोड ऑफ पेमेंट भी मांग रहा है ना वो। तो मोड ऑफ पेमेंट में आप जो भी चूज करेंगे उसका एक तरीके से एविडेंस ही आगे अगर प्रोड्यूस करने के लिए बोला गया तो आपको करना पड़ेगा। तो आई थिंक उसको थोड़ा अपडेशन करना ही पड़ेगा सीए फॉर्म्स। और सर जो फर्म्स कम स्टाइपेंड देते हैं एज पर दी आईसीआई रूल, उस केस में क्या कराया जाए फिर? नहीं, देखिए एज पर आईसीआई के गाइडलाइन से जो स्टाइपेंड कंपलसरी है वो तो देना ही है, जी ठीक है, बिल्कुल। उससे कम तो हो ही नहीं सकता। तो वहां पर वो रिफ्लेक्ट होगा ई डायरी में, वो तो फिर कंप्लाइंस ही पूरी नहीं हुई। जो इंस्टीट्यूट की नेसेसरी कंप्लाइंस है, देखिए ई डायरी कंसेप्ट लेकर क्यों आया है इंस्टीट्यूट, इसीलिए तो लाया है कि सारे चेक्स हो जाएंगे, स्टूडेंट्स को तो फायदा है ही, और साथ में जो ये इश्यूज आते थे पहले, बहुत इश्यूज भी आए हैं इस तरीके के इंस्टीट्यूट में कि भाई स्टाइपेंड कम मिल रहा है। आर्टिकल्स बाद में बताते थे इस चीज को, इंस्टीट्यूट में लेकर जाते थे कि भाई हमें कम स्टाइपेंड मिला। तो इन सब चीजों में भी एक कंट्रोल होगा, एक चेक मिलेगा, और ये बहुत जरूरी है। तो यहाँ से ये ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी कि कितना स्टाइपेंड मिला, एज पर आईसीआई गाइडलाइन मिला भी या नहीं।
थैंक यू सर। चलिए, और किसी की कोई क्वेरीज हो तो बताएं। सर सीए अनिमेश पंगल जी जो कि मॉडरेटर है, उनके पास भी कुछ क्वेरीज है, जी एक बार अनिमेश जी बताएं। उनको बोलते हैं। थैंक यू सो मच राहुल सर, आपने फॉर सच अ वंडरफुल सेशन। मुझे समझता हूँ कि सारी क्वेरीज जो भी स्टूडेंट्स की थी, चाहे वो टेक्निकल थी, चाहे वो थ्योरेटिकल थी, वो सारी कंक्लूजन पे आ गई होंगी। आपने अपने सेशन में बताया भी था कि एक मुझे बात सही लगी और स्टूडेंट को समझना भी चाहिए कि अगर इसको हम फोर्टनाइटली रखेंगे या फिर एक वीक डेज पे रखेंगे तो दिक्कत होगी। अगर वो डेली भरेंगे अपनी डायरी तो शायद उनकी बहुत सारी टेक्निकल क्वेरीज सॉल्व हो जाएंगी, प्रिंसिपल को भी दिक्कत नहीं आएंगी, स्टूडेंट्स को भी दिक्कत नहीं आएंगी। स्टूडेंट्स ने भी काफी अपनी क्वेरीज पूछ ली, मेरे को भी क्वेरीज। एक सानिया जी ने लिखा है कुछ, मैं 1 मिनट पहले अनिमेश जी मैं ये पढ़ देता हूँ। सर हम रोज अपडेट करके सबमिट कर दें तो चैलेंज है, या हर 15 दिन में सबमिट करना है? देखिए सबमिशन तो 15 दिन में ही है सानिया, आप रोज उसमें डेटा फीड करके सेव कर सकते हैं, ठीक है। और सबमिशन जो होगा वो सेकेंड फोर्टनाइट में होगा, मतलब आफ्टर 15 डेज, राइट। 1 से 15 वाला जो आप डेटा फीड करके सेव कर लेंगे वो 16 या उसके बाद ही आप सबमिट करें तो बेटर है, ठीक है सानिया। सर संडे शुड बी मार्केट जी, वीक ऑफ ही होता है संडे, संडे इज अ वीक ऑफ, बट कभी कभी चीजें होती हैं, काम निकल आते हैं, तो काम करने के लिए आप जाते हैं तो वो भी एक लर्निंग ही है, एक्स्ट्रा लर्निंग है ना। सर स्टाइपेंड 1 मंथ की शो करनी है, ऑब्वियसली प्राची स्टाइपेंड 1 मंथ की ही शो करनी है, अनलेस एंड अनटिल कोई और ऑप्शन वहां पर आ जाए। ओके ठीक है अनिमेश जी बताएं। सर थैंक यू सो मच फॉर योर सेशन, थैंक यू सिकासा टीम। मैं इसके बाद एक और स्लाइड रह गई थी मेरी अनिमेश जी, तो अच्छा। मैं कर देता हूँ, हालांकि वो भी थैंक यू स्लाइड ही है। सो थैंक यू, पहले मैं एक लाइन बोलना चाहूंगा हेलेन हेस की, द एक्सपर्ट इन एनीथिंग वाज वंस ए बिगिनर। जब मैंने भी अपना जर्नी स्टार्ट की थी सीए की, तो मुझे भी सीखना था सब कुछ, मैं भी एक बिगनर था, और धीरे धीरे करके मैंने चीजें सीखी और अभी भी सीख रहा हूँ। तो ई डायरी का जो कंसेप्ट है वो भी अभी नया है, और अभी आप लोग, मैं भी और हम सभी उसमें बिगनर्स हैं, तो हम भी उस ई डायरी को करते करते एक्सपर्ट बन जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए ई डायरी को एक तरीके से उसके अपना एक्सेप्ट ही करना है हमें, और जितना जल्दी हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, लर्न करेंगे चीजों को, वो ज्यादा अच्छा है। और ये स्टूडेंट्स के और प्रिंसिपल के बेनिफिट के लिए ही है, और ज्यादा बेनिफिट इससे स्टूडेंट्स को ही होगा, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वेबिनार एंड द अपॉर्चुनिटी गिवन बाय नितिन सर, थैंक यू वेरी मच। जी अनिमेश जी। थैंक यू सो मच राहुल सर। सर अभी एक पल्लव गुप्ता का भी मैसेज आया है। सर जो जी स्टाइपेंड डिटेल्स आप बोल रहे हैं जनवरी की फेब की फोर्टनाइट में, पर हमें अभी तक तो जन में ही डाल रखी है और अप्रूव भी करानी है, तो क्या हम उसमें करेक्शन करें? नहीं, करेक्शन का तो अब ऑप्शन ही पलक उसमें चला गया है, क्योंकि करेक्शन का जो ऑप्शन था वो उसके बाद, मतलब उसके दूसरे फोर्टनाइट पे था, और अप्रूव भी चूंकि हो चुका है वो, तो अब करेक्शन का तो कोई चांस ही नहीं है, तो अब उसमें कोई करेक्शन होना ही नहीं है। ठीक है सर, थैंक यू। स्टूडेंट सर, एक तो आपकी जो स्लाइड है, आपकी जो पीपीटी है, वो जी उसकी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो मैं सिकासा टीम से रिक्वेस्ट करूंगा एक बार सर से कोऑर्डिनेट करके जी स्टूडेंट तक वो स्लाइड पहुंचा दें। साथ में ये जो सारा मटेरियल है वो बीओएस की वेबसाइट पर भी इजीली अवेलेबल जी, है, तो आप वहां से मैंने भी वहीं से ये डेटा बनाया हाँ, तो ये आप वहां से भी एक्सेस ले सकते हैं। जी और बस बाकी सर की डिटेल्स यहाँ पे स्क्रीन पर भी शो हो रही हैं, तो कोई भी क्वेरीज हैं तो सर अवेलेबल हैं अपने फ्री टाइम में।
थैंक यू सो मच सर, आपने एक वंडरफुल सेशन दिया, सारी क्वेरीज सॉल्व कर दी। थैंक यू सिकासा टीम, उन्होंने ये सेशन ऑर्गेनाइज कराया। नितिन सर, अपॉर्चुनिटी देने के लिए मुझे मॉडरेटर के तौर पे। हालांकि इस सेशन में मॉडरेटर का ज्यादा रोल था नहीं, लेकिन ठीक है, सर ने वो एक अपॉर्चुनिटी दी है, तो आप सबसे जुड़ने का मौका मिला। थैंक यू शिवांग, यश, उदित, अभी जो मुझे दिख रहे हैं। पलक का मैसेज आया है। अनिमेश जी, मैं एक चीज और चाहूंगा कि अगर और कुछ इनपुट अगर आप दे सकें स्टूडेंट्स को, तो मैं चाहूंगा कि वो भी आप प्लीज, यू आर मोस्ट वेलकम, आई सर रिक्वेस्ट यू। बिल्कुल सर, आपकी बात मानी जाएगी। इनपुट सर, मैं इस टॉपिक पे तो ज्यादा क्या दूं, जैसे सर ने स्टार्टिंग जब की थी तो बताया था कि कंप्लाइंस जैसा है, समझने जैसा, थ्योरेटिकल जैसा इस टॉपिक में कुछ है नहीं। एक डायरी है जो हम फिजिकल बनाते थे, आपने अपनी जर्नी में बनाई होगी, मैंने मेरी जर्नी में बनाई है। बस उसको इंस्टीट्यूट ने थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट करके अब पोर्टल पे डाल दिया है, क्योंकि जैसे अनुज सर ने स्टार्टिंग में कहा था कि अब एआई के साथ इंस्टीट्यूट जा रहा है, और इंस्टीट्यूट धीरे धीरे अपने कोर्सेज में, अपने स्टडी पैटर्न में चेंजेस ला रहा है। तो बस एक कंसेप्ट है, और कोई भी जब चेंजेस आते हैं तो मैं हमेशा कहता हूँ कि आप चेंजेस के साथ चलेंगे, उनको क्रिटिसाइज करने की जगह अगर उनके साथ चलेंगे तो इजी जर्नी बहुत इजी हो जाएगी। हम क्रिटिसाइज करेंगे इंस्टीट्यूट को कि क्या जरूरत थी ये ई डायरी लाने की, बढ़िया तो चल रहा था, तो उसका कुछ सॉल्यूशन तो होना नहीं है। सॉल्यूशन का केवल एक ही है कि आप उस जर्नी के साथ चलें, थोड़ा अडॉप्ट कर लें। दिन में 5 मिनट अगर इस डायरी के लिए निकाला जाएगा तो शायद ये ऐसी मॉडरेशन की या फिर ऐसे वेबिनार की ज्यादा जरूरत पड़ेगी भी नहीं, हम किसी और अच्छे टॉपिक पे बात कर पाएंगे उसके बाद। तो थैंक यू सो मच सर, आपके ये इनिशिएटिव के लिए। एक पलक का मैसेज आया है कि सर 1-2 मंथ्स की मैंने गलत डिटेल्स डाल दी है स्टाइपेंड की, तो अब कुछ नहीं हो सकता उसका। पलक, वैसे तो अब कुछ भी नहीं हो सकता है, वो सबमिट हो चुका है, और एडिट का भी ऐसा अभी कोई ऑप्शन नहीं है, तो उसमें कुछ नहीं होगा। इन केस अगर आपको लगता है तो आप फिर भी मेल कर सकते हैं इंस्टीट्यूट को, बट आई थिंक उसका इतना कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स आपको मिलेगा नहीं, बट फिर भी आप एक मेल तो ड्रॉप कर ही सकते हैं इंस्टीट्यूट। ओके सर, थैंक यू। I will hand over the moderation to Shivang to please conclude the session. थैंक यू अनिमेश भैया, थैंक यू सी अनिमेश मंगल जी, थैंक यू सी राहुल गुप्ता जी, एंड थैंक यू सी नितिन पलक गुप्ता जी। फिर आई से वुड कोई लाइक, पलक का फिर से मैसेज आया, बट सर इसका कोई नेगेटिव इफेक्ट तो नहीं होगा ना, प्लीज आंसर। देखिए, नेगेटिव इफेक्ट वैसे तो नहीं होना चाहिए स्टाइपेंड से रिलेटेड, बट हाँ, वो स्टाइपेंड एज पर आईसीएआई गाइडलाइंस होना चाहिए, है ना। और फिर भी मैं आपको ये कहूंगा कि आप एक बार मेल ड्रॉप कर दें इंस्टीट्यूट, वो ज्यादा बेटर रहेगा। ओके पलक। और भी कुछ क्वेरीज हो तो अपन पहले वो ले लेते हैं। हाँ, और किसी की भी क्वेरी हो, रेज हैंड करके भी वो पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू, वेलकम पलक। शिवानी ने फिर से हैंड रेज किया है, बताइए शिवानी। हाँ, ये ई डायरी हम लोग ने सबमिट किया है, देन ऑल्सो वी आर रिसीविंग ईमेल फ्रॉम आईसीआई दैट वी हैव नॉट सबमिटेड, नॉन ओके, सबमिशन का मेल। नहीं मेल तो ऐसे नहीं आना चाहिए, दैट मींस ये इट्स बहुत सारे आर्टिकल्स को आ रहा है यहाँ पे जिन्होंने सबमिट किया है, देन टू लाइक प्रिंसिपल आल्सो रिसीविंग द मेल एंड द आर्टिकल आल्सो रिसीविंग द मेल। ऐसा तो मेल मैंने रानी आपको। जी, विच एरिया, फ्रॉम वेयर? मुंबई का। मुंबई में। तो मैम, प्लीज ड्रॉप अ मेल इन दिस रिगार्ड एंड वी विल सी इट। ओके फाइन, आई विल शेयर। और कोई क्वेरीज हो तो प्लीज आप लोग पूछ लीजिए। Sir, should we need to fill or submit e-diary on a daily basis? कंपलसरी नहीं है विशाल, बट डेली बेसिस पे करेंगे तो वो अच्छा ही है, क्योंकि उससे आपका भी काम कम रहेगा और एफिशिएंटली आपका जो काम आपने किया आर्टिकलशिप में वो रिकॉर्ड होता रहेगा। और कुछ क्वेरीज? Then Shivang, we may conclude. Yes, I would like to invite Shivangi Agarwal for the vote of thanks. Member So Sikasa this is my CIRC. privilege. So this is my privilege to be delivering the vote of thanks. On the behalf of entire Sikasa committee, I would like to extend my sincere gratitude to CA Rahul Gupta sir
for delivering such an insightful session on e-diary today. So I'm confident the way you have delivered the session in such a student-oriented manner, it has added meaningful lessons to all the students attending today. And I would also like to extend my sincere gratitude to CA Animesh Mangal sir for conducting the session so smoothly. And a heartfelt thanks to our respected CIRC chairman and our SICASA chairman, CA Nitin Gupta sir, for his constant support, and the entire SICASA committee for organizing this session so seamlessly. Lastly, thank you to all the participants for joining us with such enthusiasm. We hope today's sessions adds value to your professional journey ahead. Thank you, everyone, and have a great evening ahead. Thank you very much, Shivani. Thank Thank you, thank sir. you. Thank you. Thanks We to will be all. concluding this session. Thank you. Thank you.